یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اب آپ خبریں سنیے۔ لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے کے آسن اور کامیاب انعقاد کے بعد تمام تر توجہ دوسرے مرحلے کی طرف مرکوز۔ مرحلے کے تحت 12 ریاستوں اور یوٹیز کے 88 پارلیمانی حلقوں پر 26 اپریل کو ڈالے جائیں گے ووٹ۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ چناو مہم میں آ رہی ہے تیزی۔ سیاسی پارٹیاں رائے دہندگان کو اپنی جانب راغب کرنے میں نہیں کر رہے ہیں کوئی بھی دقیقہ فروزداشت۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیر اعظم نریندر مودی کا کئی چناو جلسوں سے خطاب۔ ملک کو ترقی کی نئی بلندیوں تک لے جانے کا دہرایا عزم۔ اور ایل جی منوج سنہا نے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کے دوران ہنر مندی اور کارخانہ داری محکمے کے کام کاج کا لیا جائزہ۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ملک میں لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے کی آسن اور کامیاب تکمیل کے بعد اب تمام تر نظریں لوک سبھا انتخابات کے دوسرے مرحلے کی طرف مرکوز ہو گئی ہیں۔ چناؤ کے دوسرے مرحلے کے لیے چناو مہم ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید تیز ہو رہی ہے۔ اس مرحلے میں 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں 88 پارلیمانی نشستوں پر اس مہینے کی 26 تاریخ کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ان میں کیرلا کی 20، کرناٹک کی 14، راجستھان کی 13، اتر پردیش اور مہاراشٹر کی 8، مدھیہ پردیش کی 7، آسام اور بہار کی 5، مغربی بنگال اور چھتیس گڑھ کی 3 نشستوں کے علاوہ تریپورہ اور جموں کشمیر کی ایک نشست شامل ہے۔ جموں کشمیر کی جموں پارلیمانی نشست پر دوسرے مرحلے کے تحت ووٹ ڈالے جائیں گے۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کی طرف سے ملک کے مختلف علاقوں میں روڈ شوز اور چناو ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور لیڈر رائے دہندگان کو اپنی جانب راغب کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے۔ سینئر بی جے پی لیڈر اور وزیر اعظم نے آج مہاراشٹر میں ناندیڑ اور پربھانی میں چناو ریلیوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے کل لوک سبھا چناؤ کے پہلے مرحلے کے دوران بھاری تعداد میں رائے دہندگان کی طرف سے اپنے ووٹ کا استعمال کرنے پر مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے اس تہوار میں لوگوں کی بڑھ چڑھ کر شرکت کو ہر صورت میں یقینی بنایا جانا چاہیے۔ اس موقع پر نریندر مودی نے NDA حکومت کی حصول یابیوں کا تفصیل سے ذکر کیا۔ انہوں نے خاص طور سے خواتین کے لیے بیت الخلا کی سہولیات فراہم کرنا، غریب لوگوں کے لیے بینک کھاتے کھولنا، ڈیجیٹل انڈیا اور UPI ٹیکنالوجی متعارف کرنا جیسے اقدامات کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 25 برس کے دوران دنیا میں بھارت کے وقار اور ساکھ میں مزید اضافہ ہوگا۔ انہوں نے بھارت کو دنیا کی تیسری بڑی اقتصادیات بنانے کے عزم کو بھی دہرایا۔ انہوں نے کسانوں کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا بھی ذکر کیا۔ بعد میں وزیر اعظم نے کرناٹک میں کچھ دیگر چناو جلسوں سے بھی خطاب کیا۔ سینئر بی جے پی لیڈر اور وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا ہے کہ بی جے پی حکومت 2047 تک وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ احمد آباد میں وکست بھارت ایٹ 2047 سے متعلق ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کی اقتصادی ترقی اور دیگر حصول یابیوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ گجرات نے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے میں ایک اہم رول ادا کیا۔ کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی نے الزام لگایا کہ ملک میں سیاسی مقاصد کے لیے کلچر، مذہب اور زبان کی یکسانیت کو لاگو کیا جا رہا ہے جبکہ گوناگونیت کو اکھاڑ پھینکا جا رہا ہے۔ چلاکوڑی حلقے میں UDF امیدوار کے حق میں منعقدہ ایک چناو ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چند پسندیدہ افراد کے لیے پالیسیاں مرتب کی جا رہی ہیں جبکہ کئی دیگر کو بے روزگاری اور غربت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ ملک کی ترقی کی شرح 7.5% سے گھٹ کر 5.9% ہو گئی ہے اور ملک کا قرضہ 55 لاکھ کروڑ روپے سے بڑھ کر 205 لاکھ کروڑ تک پہنچ گیا ہے۔ جیسے کہ پہلے خبر دی جا چکی ہے کہ ملک میں کل لوک سبھا انتخابات کے مرحلے میں 102 حلقوں پر بھاری پولنگ درج کی گئی۔ مجموعی طور پر ان حلقوں میں 62.37% رائے دہندگان نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر کے امیدواروں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ ووٹنگ مشینوں میں بند کر دیا۔ ووٹروں نے گرمی کی شدت کے باوجود بھی بڑھ چڑھ کر ذمہ داری اور فخر کے ساتھ اس جمہوری عمل میں حصہ لیا۔ خاص طور سے پہلی مرتبہ اپنے آئینی حق
हक का इस्तेमाल करने वाले नौजवानों में काफी जोशो खरोश पाया जा रहा था और ये राय दहिंदगान वोट का इस्तेमाल करके खुशी से फूले नहीं समाते थे। लक्षद्वीप लोकसभा निशस्त पर सबसे ज्यादा यानी 83.88% वोटिंग दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर पार्लिमानी हलके में भी कल वोट डाले गए। इस हलके में भी अच्छी खासी वोटिंग दर्ज की गई और मजमूई तौर पर 68.27% वोटरों ने अपने वोट कास्ट किए। इस मरहले के तहत 1625 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला हो रहा है, जिनमें सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वुज़रा नितिन गडकरी, सर्बानंदा सोनोवाल, किरण रिजिजू, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, संजीव बालियान और बीजेपी के दीगर लीडर तामिली साई सौंदराराजन और जतिन प्रसादा के अलावा कांग्रेस लीडर गुरु गोगोई, कार्ति चिदम्बरम और नकुल नाथ शामिल हैं। डीएमके के दयानिधि मारन भी इस मरहले में चुनाव लड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के कामयाब और आसान इनेकाद के लिए वोटरों और पूरी इलेक्शन मशीनरी का शुक्रिया अदा किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने आज पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उधमपुर पार्लिमानी हलके में लोगों की तरफ से अच्छी खासी तादाद में वोट का इस्तेमाल करने के लिए वहां के लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि दूर दराज इलाकों समेत हलके के तमाम इलाकों के वोटरों ने जमहूरी अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दूसरे मरहले के चुनाव में भी लोग इसी गर्मजोशी और वलवले के साथ घरों से बाहर निकलकर अपने आईनी हक का इस्तेमाल करेंगे। जम्मू कश्मीर में भी चुनावी सरगर्मियां रफ्ता रफ्ता अपनी उरूज को पहुंच रही हैं। मुख्तलिफ जिलों में सियासी पार्टियों की तरफ से चुनाव जलसों और रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है और लीडरान अपनी अपनी पार्टियों का मंशूर लोगों के सामने रखकर राय दहिंदगान को अपनी जानिब माइल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि लोगों को पार्लिमानी इंतखाबात के जरिए से मुल्क के बड़े ऐवानों में अपनी आवाज पहुंचाने का मौका फराहम होता है। साथ ही इससे लोगों के मसाइल और मुतालबात को उजागर करने का भी मौका मिलता है। वो आज राजपुरा में एक चुनावी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों को एक ऐसा नुमाइंदा पार्लियामेंट भेजना चाहिए जो सही मानों में लोगों की तर्जुमानी करे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मौजूदा इंतजामिया बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने और उनके मसाइल हल करने में बकौल उनके नाकाम हुई है। जलसे से पार्टी के कुछ दीगर लीडरों ने भी खिताब किया। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए दाखिल किए गए कागजात नामजदगियों की आज जांच पड़ताल हुई। इस मरहले के तहत 10 रियासतों और 2 यूटीज में 94 पार्लिमानी हलकों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। 22 अप्रैल तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। दरियास्तां चौथे मरहले के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी भरने का अमल जारी है। चौथे मरहले के तहत 9 रियासतों और 1 यूटी में फैले 96 पार्लिमानी हलकों में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इस मरहले के तहत आंध्र प्रदेश में एक मरहले के तहत 175 असेंबली निशस्तों के लिए होने वाले चुनाव और ओडिशा में 28 हलकों पर होने वाले असेंबली चुनाव के पहले मरहले के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हुआ। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके में भी आज नामजदगी कागजात की जांच पड़ताल हुई। हलके के रिटर्निंग अफसर ने हमारे नुमाइंदे को तफसीलात देते हुए बताया कि हलके में कुल 28 नामजदगियां दाखिल की गई थीं। 3 उम्मीदवारों ने 2-2 मरतबा कागजात दाखिल किए थे और अब 25 उम्मीदवारों में से 4 की नामजदगियां रद्द हुई हैं, जबकि 21 उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त पाए गए हैं। उम्मीदवार 22 अप्रैल से पहर 4 बजे तक अपने नाम वापस ले सकते हैं।
दूसरी तरफ पुरअमन, शफाफ और मुनसिफाना चुनाव को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया की तरफ से तैयारियों को भी हतमी शक्ल दी जा रही है। मुतल्लिका अमले को तरबियत से हमकिनार किया जा रहा है और मुख्तलिफ अजला में स्वीप के तहत मुतअद्दिद इख्तराई प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है ताकि आम लोगों बिलखसूस नौजवानों में वोट की अहमियत को उजागर किया जा सके और इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि पार्लिमानी इंतखाबात के आने वाले बाकी मरहलों में राय दहिंदगान भारी तादाद में निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। कपवाड़ा में आज स्वीप के तहत डीसी ऑफिस कम्प्लेक्स से एक साइकिल रेस का इनेकाद किया गया जो मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कपवाड़ा में इख्ताम पजीर हुई। इस साइकिल दौड़ में काफी तादाद में तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर जिला चुनाव ऑफिसर आयुषी सूदन ने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों का बुनियादी मकसद यह है कि आम लोगों को वोट की अहमियत के बारे में जानकारी दी जा सके और उन्हें वोटिंग के दिन पोलिंग मराकज की तरफ रागिब किया जा सके। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके के लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर मनोहर सिंह ने आज कुलगाम जिले में इलेक्शन अखराजात से मुतल्लिका रहनुमा खतूत की मौसर अमल आवरी का एक मीटिंग के दौरान जायजा लिया। मीटिंग में जिला चुनाव ऑफिसर अत्तर आमिर खान के अलावा कई दीगर अफसरों ने भी शिरकत की। ऑब्जर्वर मौसूफ ने इस मौके पर कहा कि जमहूरी अक़दार की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वज़ा किए गए कवानीन की 100% अमल आवरी लाजमी है। बीजेपी लीडर और पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज श्रीनगर में विकसित भारत सफीरों के एक ग्रुप के साथ अमृतकाल के दौरान मुल्क के तरक्याती सफर से जुड़े मुतअद्दिद मामलात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने दफा 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में आई मुस्बत तब्दीली के हवाले से भी ग्रुप के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कुदरत ने बेमिसाल खूबसूरती से मालामाल किया है और मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाने की वादाबंद है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में एक आला सतही मीटिंग के दौरान हुनरमंदी, कारखानादारी और लेबर वेलफेयर महकमों के कामकाज का जायजा लिया। एलजी ने मीटिंग के दौरान स्किल डेवलपमेंट स्कीमों की मरबूतकारी करके मुख्तलिफ सेक्टरों में रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नौजवानों को जदीद हुनरों से लेस किया जाना चाहिए ताकि वो खुद अपना रोजगार कमाने के अहल बन सकें। उन्होंने तिबी निगहदाश्त, समाजी तहफ़्फ़ुज़ाती स्कीम और खवातीन और नौजवानों के लिए लाइवलीहुड जनरेशन स्कीमों की मौसर अमल आवरी की भी हिदायत दी। उन्होंने गैर मुनज़्ज़म कामगारों के लिए तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दामात को मुस्तहकम करने की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि इन वर्करों की ई श्रम पर रजिस्ट्रेशन को भी यकीनी बनाया जाना चाहिए। मीटिंग के दौरान कई दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में एलजी के मुशीर आर भटनागर, चीफ सेक्रेटरी अटल ढिल्लो, लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनदीप कुमार भंडारी के अलावा कई दीगर आला अफसरों ने भी शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी अटल ढिल्लो ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जगती टाउनशिप में 2 रोजा मल्टी स्पेशलिटी कैंप का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह के मेडिकल कैंपों से आम लोगों को आला मयार के डॉक्टरों से इलाज मुआवजा कराने की सहूलियात दस्तयाब होती हैं। अटल ढिल्लो ने लोगों पर जोर दिया कि वो आगे आकर PMJAY सेहत स्कीम से इस्तेफादा करें। उन्होंने कहा कि हर एक फर्द को आयुष्मान भारत कार्ड दिया जाना चाहिए। वहां मौजूद लोगों ने अपने मसाइल चीफ सेक्रेटरी के नोटिस में लाए। चीफ सेक्रेटरी ने उन्हें यकीन दिलाया कि तमाम जायज मुतालबात पर हमदर्दाना गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि नए क्रिमिनल कवानीन की तश्कील से ये बात जाहिर हो जाती है कि मुल्क बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली में आज एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम नामी 3 क्रिमिनल कवानीन को वजूद में लाने से क्रिमिनल जस्टिस निजाम को एक नई जहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन कवानीन ने क्रिमिनल जस्टिस निजाम को एक नए दौर में दाखिल किया है। चीफ जस्टिस ने मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि मसनूई जहानत की बदौलत क्रिमिनल केसों की पेशरफ्त में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि ये नए कवानीन तब ही कामयाब होंगे जब हर एक शहरी उन्हें अपना लेगा।
डायरेक्टर सेरीकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद बट ने जम्मू में एक मीटिंग के दौरान जम्मू सूबे में महकमे के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने खास तौर से रेशम के कीड़े पालने, गुंचा अब रेशम की पैदावार बढ़ाने और रेशम के मयार में बेहतरी लाने से जुड़े उमूर पर अफसरों के साथ तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि जम्मू में सेरीकल्चर सन्नत को मयार की बुलंदियों तक ले जाने के लिए तमाम तरह इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महकमा HADP के तहत सेरीकल्चर से मुतल्लिक कई स्कीमें अमला रहा है। अमेरिका ने चीन में कायम 3 कंपनियों और बेलारूस की एक कंपनी पर पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल के कल पुर्जे फराहम करने की वजह से बंदिशें आयद कर दी हैं। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि ये कंपनियां इस तरह के लेन देन या इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस हैं जिनसे बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फरोग या इन्हें सप्लाई करने के वसाइल में मादी तौर पर खातिर खा ताउन का इजहार होता है या इसका अंदेशा पैदा होता है। इसके अलावा इन अंदेशों में पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के कल पुर्जों की तैयारी, हुसूली, इनका जखीरा करने और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना या इनका इस्तेमाल करना भी शामिल है। वादी में अगरचे दिन में कुछ अरसे के लिए हल्की धूप खिली, ताहम मजमूई तौर पर दोपहर के बाद मतला अबर आलूद रहा और कई एक मकामात पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। हमारे शोपियां के नुमाइंदे ने खबर दी है कि जिले के सोगो, थेरीना, मोलो, खुरमपुर, मोहनपुर, डांगरपुरा और कई दीगर इलाकों में जबरदस्त जालाबारी हुई जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ है। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19.3 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.9 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 12.1 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।